Hello everyone. We are doing chapter number 13, Photosynthesis in Higher Plants. This is the second video of the chapter, class 11th, Biology. In this video, we are going to cover one topic, that is the light phase of photosynthesis or light reaction. What is photosynthesis? You already know that the green parts of the plant, they make food in the presence of sunlight, and the chemical reaction involved in this photosynthesis is 6 molecules of carbon dioxide reacts with 12 water molecules in the presence of light and give 1 molecule of glucose, 6 molecules of water and 6 molecules of oxygen. This reaction is completed in two phases. One is called as the light phase of photosynthesis or light reaction, and other is called as a dark phase of photosynthesis called as dark reaction. What are the main events which occur during the light reaction of photosynthesis? First, you can see the diagram. The green parts of the plant, they absorb sunlight and use the energy of sunlight. Second, there is a splitting of water into hydrogen ion and oxygen gas. Third, there is a conversion of ADP into ATP. Adenosine diphosphate is converting into adenosine triphosphate. And also, there is a conversion of NADP, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, into reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. Labeling number 3 and 4 you can see. So, in overall you can see plants are using sunlight and water during the light reaction, and they produce oxygen, NADPH and ATP. Where this reaction takes place, this is the diagram of chloroplast in front of you. The light reaction takes place in the thylakoid. What they are doing? They are taking light energy, labeling number 1. They are taking water, labeling number 2. They are releasing oxygen, labeling number 3. And they are forming ATP and NADPH during light reaction, labeling number 4. These ATP and NADPH are used during the dark reaction which takes place in the stroma of the chloroplast, during which the carbon dioxide is converting into sugar or glucose. Thylakoid membranes. Molecules embedded in the phospholipid bilayer of thylakoid membranes are, what are the different things which are embedded in this thylakoid membrane? First, it contains ATP synthase. You can see the diagram. A small part of thylakoid membrane is shown here. There is a thylakoid membrane. Lumen of thylakoid is shown in the form of pink color. Purple color is a stroma of chloroplast. Okay. And the membrane, in this membrane, ATP synthase is embedded. Second, this membrane also contains chlorophyll A, chlorophyll B, carotenoids and xanthophylls. These are the pigments which are embedded in the membrane and used during the process of photosynthesis. Third thing, embedded in the membrane, there is electron transport chain molecule, labeling number 3 you can see in the diagram. Okay, and this contains ubiquinones and cytochromes. So there is a labeling number 1, ATP synthase. Labeling number 2 is photosystem 2 and photosystem 1. These contain pigments. And labeling number 3 is the electron transport chain. So all these 3 are used during the light reaction of photosynthesis. Let us see how the pigments are arranged. Pigments are organized into two photosystems. One is photosystem 1 and another is photosystem 2. इनका नाम कैसे रखा गया? जो पहले डिस्कवर हुआ उसका नाम रखा गया फोटोसिस्टम 1, और जो बाद में डिस्कवर हुआ उसका नाम रखा गया फोटोसिस्टम 2. एंड ईच फोटोसिस्टम हैज़ क्लोरोफिल ए होता है और उसमें एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं बाउंड बाय द प्रोटीन्स. एक्सेसरी पिगमेंट कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल बी, xanthophyll and carotenoids. All pigments except one molecule of chlorophyll A
क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल को छोड़कर बाकी सारे पिगमेंट्स लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसको एंटीना भी कहा जाता है, LHC और एंटीना। सिंगल क्लोरोफिल ए, इट एक्ट्स लाइक अ रिएक्शन सेंटर। लेबलिंग देख लीजिए, ओनली वन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ओके। And in PS1 what happens? This reaction center absorb light at 700 nanometer और इसलिए इसको कहा गया P700। और PS2 में इसका नाम रखा गया P680 क्योंकि ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। Now come to light reaction or photochemical phase of photosynthesis. What are the points or what are the steps involved in the reaction? First, there is the absorption of light. Second, water is splitting. Third, oxygen release. And fourth, formation of ATP and NADPH. ये दोनों जो लास्ट के हैं ये क्या हैं? ये they are high energy chemical intermediates and these are used during the dark reaction for the conversion of carbon dioxide to sugar. Let us start with the light reaction. What happens in this? When PS2, see the diagram, PS2 absorb red light. जब PS2 red light को absorb करता है at 680 nanometer, it is written 680 nanometer, okay, in the just below the light harvesting complex. What happens? When PS2 absorb red light of 680 nanometer wavelength, electrons are excited. Electron excite हो जाते हैं और ये ट्रांसफर हो जाते हैं to the electron acceptor number 1. अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ ट्रांसफर करेगा? The electron acceptor passes them to a chain of electron transport system number 2. लेबलिंग देखिए, जिसमें क्या है? साइटोक्रोम्स प्रेजेंट है। एंड देन दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल, मीन्स जैसे जैसे वो पास होता है एनर्जी लेवल कम होने लगता है। द इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसफर टू द पिगमेंट PS1. सो नाउ द इलेक्ट्रॉन हैज रीच टू PS1. नेक्स्ट, साइमल्टेनियसली और क्या हो रहा है? साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स इन PS1 में भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं जब ये रेड लाइट 700 नैनोमीटर की एब्जॉर्ब करते हैं तो, और इनका इलेक्ट्रॉन भी पहुंच जाता है कहाँ पर? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देंगे? दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्ड डाउनहिल टू मॉलिक्यूल ऑफ NADP और NADP विल कन्वर्ट इनटू NADPH. Oh, is it clear? एंड वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दिस कि जो ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, जो पैसेज जो हो रहा है PS2 से PS1 में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, सो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 टू PS1 एंड फाइनली डाउनहिल टू NADP, लास्ट में तो NADP के पास पहुंच गया इलेक्ट्रॉन। दिस स्कीम इज कॉल्ड एज Z स्कीम, क्योंकि ये Z शेप का स्ट्रक्चर बना रहा है ड्यू टू इट्स zigzag शेप. Is it clear? That's why the name given Z scheme of light reaction. Next, what is next happening during the light reaction? The water splitting complex. अब water को break होना है. ये कहाँ present है water splitting complex? It is present in PS2 and on the inner side of thylakoid membrane. Thylakoid membrane का जो inner side है वहाँ पर ये complex present होता है और water split होता है. Water split होने का equation देखिए. 2 water molecules split हो रहे हैं, 4 hydrogen ion बन रहे हैं, 1 molecule of oxygen बन रहा है, plus 4 electrons release हो रहे हैं. Okay? And now, where these electrons will go? PS2 can supply electrons continuously by replacing electron from water splitting. जो ये इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चला जाएगा? PS2 के पास चला जाएगा, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया है और इस इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करने के लिए जो निकल गया था उसको रिप्लेस करने के लिए ये वाटर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है PS2. Thus, PS2 provide electrons needed to replace those removed from PS1. और अब जो PS1 में से जो इलेक्ट्रॉन निकल गया था वो रिप्लेस हो जाएगा बाय द PS2. ओके, सो वाटर से इलेक्ट्रॉन PS2 में जा रहा है, PS2 से इलेक्ट्रॉन PS1 में जा रहा है.
और ये चेन कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। द प्रोटॉन हाइड्रोजन आर ऑल्सो यूज्ड टू रिड्यूस NADP टू NADPH एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज जब NADP NADPH में कन्वर्ट हो रहा है, एक तो इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और एक प्रोटॉन्स की भी ज़रूरत है, हाइड्रोजन आयन की भी ज़रूरत है। एंड थर्ड थिंग, ऑक्सीजन लिबरेट हो गई एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ATP का बनना, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम PS2 टू PS1 तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जाते हैं और ATP बनता है। ADP कंबाइंस विद द फॉस्फेट एंड फॉर्म ATP। क्लियर है ये? ओके, सो 3 थिंग्स आर फॉर्मिंग, NADPH इज फॉर्मिंग, ATP is forming, oxygen gas is forming during the light reaction. You can see the overall reaction here, starting from the point number 1. photosystem 2 है जिसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टू प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसमें एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है। अब ये डाउनहिल जाएगा, मूविंग थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से निकलेगा, पॉइंट नंबर 2 देखिए, वहाँ पर एनर्जी जो लूज होगी वो ADP को ATP में कन्वर्ट करने में यूज होगी। इट इज कॉल्ड एज केमी ऑस्मोसिस। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएगा? फोटोसिस्टम 1 पर। साइमल्टेनियसली फोटोसिस्टम 1 भी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन उसका भी एक्साइट होगा और इट विल गो टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? अल्टीमेटली NADP को। NADP along with the electron along with the hydrogen ion will convert into NADPH. Is it clear? Photophosphorylation, what is this? Formation of ATP. Phosphorylation क्या होता है? ATP का बनना इन द सेल्स, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन। लेकिन अगर ये फॉस्फोरिलेशन लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोरिलेशन। ओके, एंड इट ऑकर्स इन 2 ways, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। देखिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है? इट ऑकर्स व्हेन 2 फोटोसिस्टम वर्क टुगेदर। 2 फोटोसिस्टम काम कर रहे हैं इसमें, जो अभी हम पढ़ चुके हैं Z स्कीम के अंदर, PS2 एंड PS1 थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी काम कर रही है इसके अंदर और ATP बन रहा है। क्या क्या बनता है यहाँ इस प्रोसेस के अंदर? ATP बन रहा है, NADPH बन रहा है। इट इज़ नॉन साइक्लिक। क्यों है ये नॉन साइक्लिक? बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था फ्रॉम PS2, इट डू नॉट कम बैक टू इट बट पास टू NADP। जो इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 से निकल कर गया था वो कहाँ पहुँच गया? NADP के पास। ये वो वापस फोटोसिस्टम 2 के पास नहीं आया। फोटोसिस्टम 2 को इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वाटर से जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन था उसको लेना पड़ा। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक। इलेक्ट्रॉन इज नॉट कमिंग बैक टू द फोटोसिस्टम 2। ओके, दिस इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नाउ कम टू साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये कहाँ होता है? डायग्राम देखिए नीचे, स्ट्रोमा लेमिला में होता है। ग्रैनम होते हैं, ग्रैनम को ज्वाइन करने के लिए स्ट्रोमा लेमिला होता है। सो इट ऑकर्स इन स्ट्रोमा लेमिला व्हेन ओनली PS1 इज फंक्शनल। यहाँ पर सिर्फ PS1 काम करता है, PS2 इज नॉट देयर। इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होता है विद इन फोटो सिस्टम एंड ATP सिंथेसिस ऑकर ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरोफिल से निकला, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से निकला, वापस क्लोरोफिल के पास आ गया। सो दिस इज द साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ओके, द लेमिला ऑफ ग्रेना, ग्रेना के जो लेमिला थे उसमें PS1 PS2 दोनों होता है, बट द स्ट्रोमा लेमिला मेम्ब्रेन्स में PS2 नहीं होता, NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता जो कि NADPH बनाने में हेल्प करता है। So only ATP is synthesized during the cyclic photophosphorylation. No NADPH is formed. The electron does not pass on to NADP but is cycled back to PS1. ये NADP के पास नहीं जाता इलेक्ट्रॉन, बल्कि PS1 के पास वापस आ जाता है। इसलिए इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ ATP बनता है। ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जब होगा जब लाइट बियॉन्ड 680 नैनोमीटर की होगी, अवेलेबल होगी क्लोरोफिल के लिए।
Chemiosmotic hypothesis. इट एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस. ये बताएगा किस तरह से एटीपी का सिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर. केमियोस्मोसिस में क्या है? मूवमेंट ऑफ आयंस होते हैं. आयंस मूव करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस. इट ऑकर्स इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? केमियोस्मोसिस के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? नंबर 1 लेबलिंग देखिए. अ मेम्ब्रेन जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है. अ प्रोटॉन पंप जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की फॉर्म में प्रेजेंट है. अ प्रोटॉन ग्रेडियंट मीन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन देर इज अ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन. एक तरफ ज़्यादा हाइड्रोजन है, एक तरफ कम हाइड्रोजन है, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया. एंड इट इज़ रिक्वायर्ड एटीपी सिंथेज. पॉइंट नंबर 4, एटीपी सिंथेज चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, देन हमें चाहिए प्रोटॉन पंप और हमें एक मेम्ब्रेन चाहिए. So now let us see how this proton gradient develop. प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता कैसे है? क्यों एक जगह ज़्यादा प्रोटॉन हो जाते हैं और एक जगह कम हो जाते हैं इन द थाइलेकॉइड? सबसे पहला है ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है वो होता कहाँ पर है? ये क्लियर है आपको कि इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. डायग्राम देखिए, मेम्ब्रेन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के इनर साइड पर वाटर ब्रेक हो रहा है. हाफ ऑक्सीजन मिल रहा है और 2 हाइड्रोजन आयन मिल रहे हैं. सो द प्रोटॉन एक्यूमुलेट इन द ल्यूमन ऑफ थाइलेकॉइड. इसलिए जो प्रोटॉन है इकट्ठे होने लगते हैं थाइलेकॉइड के अंदर, थाइलेकॉइड ल्यूमन के अंदर. सेकेंड रीजन क्या है? द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, PS2 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. जहाँ ETC लिखा हुआ है, जहाँ E लिखा हुआ है, दिस इज द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, यहाँ पर प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ओके, और जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किसको करता है? टू द हाइड्रोजन कैरियर. ओके, ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन कैरियर. तो अब क्या होगा? सो दिस मॉलिक्यूल रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा वाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन. तो अब ये क्या करेगा? जैसे से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा ये, वो एक प्रोटॉन को भी स्ट्रोमा से उठा लेगा और उसको कहाँ डाल देगा? थाइलेकॉइड के ल्यूमन के अंदर. इज इट ओके? सो दिस इज द सेकेंड वे द ल्यूमन इज गेटिंग मोर प्रोटॉन्स. थर्ड रीजन देखिए, डायग्राम देखिए यहाँ पर. NADP रिडक्टेज एक एंजाइम है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? आउटसाइड, लोकेटेड ऑन स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. आउटसाइड है, आउटर मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा की साइड पर प्रेजेंट है. अब ये क्या करता है एंजाइम? ये NADP को NADPH में कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन. तो प्रोटॉन ये स्ट्रोमा से निकाल के यूज़ कर लेता है और NADPH बनाता है. तो इसका मतलब स्ट्रोमा में और भी कम हाइड्रोजन हो गया. तो 3 रीजन्स हो गए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट. क्लियर है ये? अब प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया है, हैंस प्रोटॉन इन स्ट्रोमा आर डिक्रीज. स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम हो चुके हैं, ल्यूमन में प्रोटॉन ज़्यादा हो गए हैं. इट क्रिएट्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट. प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया है अक्रॉस द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन और pH का लेवल ल्यूमन के अंदर कम हो गया. अब इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करना है. ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट लीड्स टू सिंथेसिस ऑफ ATP. अब ATP बनेगा बाय द एंजाइम ATP सिंथेज. सो ATP सिंथेज एंजाइम वो है जो प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करता है और ATP के बनने में हेल्प करता है. देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, ATP सिंथेज का एक स्ट्रक्चर देखिए. इसके 2 पार्ट होते हैं, CFO एंड CF1. CFO एम्बेडेड होता है मेम्ब्रेन के अंदर. डायग्राम देखिए, मेम्ब्रेन के अंदर है और ये एक चैनल का काम करता है जहाँ से प्रोटॉन ल्यूमन से निकलकर स्ट्रोमा में वापस आते हैं और प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक कर देते हैं. ओके, इज इट क्लियर? एंड CF1 क्या करता है? इट इज आउटसाइड, इट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन. और जो एनर्जी रिलीज होती है, द एनर्जी ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट, इट कॉजेज द चेंज इन द CF1 एंड ATP is formed. ADP combined with the phosphate and ATP is formed. Clear? So, 2 main steps in the chemiosmotic hypothesis are: 1. Energy is used to pump proton across a membrane to create a gradient or high concentration of proton
within the thylakoid membrane. सबसे पहला काम है कि membrane thylakoid membrane से निकलकर जो प्रोटॉन्स हैं वो ल्यूमन में आकर इकट्ठे हो जाते हैं और प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है. सेकेंड है एटीपी सिंथेस इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करता है और जो ब्रेक करने में एनर्जी निकलती है उसको वो एटीपी बनाने में हेल्प करता है. ओके, is it clear? So that's how the ATP formation take place. So by the end of light reaction we have got ATP, we have got NADPH, and also oxygen gas is released during the process of light reaction. That's all for today. Thank you very much for staying with me. Do the test which is given in the description box in the form of MCQ. Subscribe the channel to get the information about my new video.